Sir, please come up on the stage and give us the signal to start this program successfully. I request all the parents to give a huge round of applause for our director, sir, who is serving in the field of education from the last 13 years, and he is a great person. अब जाके कहीं हमने सर पे रंग सजाया है। A huge round of applause, please everyone. Momentum. Give a big round of applause for Kesar sir and the dignitary in the honor of respect. This portrait and culture, which is beautifully drawn of your time, we are going to proceed our event of the day. But before we start, I would like to announce that hard work and good work are all. There are lot of exciting prizes are there in order to motivate our students, and also I am really thankful to the parents, to the concerned parents, support and the guide they have given and they have done with their child in order to promote them, in order to mold them, and they are the one who guided them, who worked hard and supported the hard-working teachers, and that's why I am going to congratulate the rank holders for their hard work. So without delaying, I would like to request our school choir, Nilakshi and Yashika, to मग मगरे नी सारे गरे गरे सा सारे गा मग मगरे नी सारे गरे सा कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों के सरताज है कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों के सरताज हैं आप आए अतिथियों के सरताज हैं देव की भांति पूजन करें आज हम स्वागतम 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 देव की भांति पूजन करें आज हम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 थैंक यू No मम्मी डैडी के करीब होते हैं मुझे माफ करना ओम साई राम मुझे माफ करना ओम साई राम मुझे माफ करना ओम साई राम तुझसे पहले
बाबू नमस्कार। आपने अभी अभी हमारे छोटे बच्चों के कार्यक्रम को यहाँ पे देखा। मनमोहक कार्यक्रम। परसों रे मेघा मेघा, ये बच्चियाँ पिछले 4 दिन से इस पे प्रैक्टिस करते हुए इस गाने की तैयारी की हुई थी। कार्यक्रम के अगले क्रम में एक शख्सियत हमारे सर के बारे में आज भी बहुत से मामलों में हमारे डायरेक्टर सर जी के साथ बैठते हैं और सलाह मशवरा करते हैं और उसके माध्यम से कुछ निर्णय निकल करके आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए Just want to deliver a short speech without delaying and taking much of your time. As a EPS family, our main aim is not only for providing education and provoking education. The main aim of ours is to get students for this era in which we are living. Nowadays, there are a cutthroat competition in which we are living, and if there will be a single mistake with us, then we can't compete in this existing world. So for that, we, directors and all the EPS family, they worked hard, and it will only be possible with the support of the parents. As I have told that we are one family, and it is also called that a school is the second home of the students. So as the school is the second home, then we all belong to one family, and if we are not going to help, if we are not going to support each one of us, then it will be impossible for us to compete and conclude in this existing era.
as I have just observed that many of the parents, they are unwilling to attend the PTM. If you are not going to attend the PTM on time, then how we are going to know about what you want from us? How we came to know that what are the certain things you wanted to mold on your child? So for that, it is necessary and compulsory to interact with the students. Without interaction, it will be impossible for us to understand your needs and what you want. So, once again, I thanks to the concerned parents, and I really appreciate you all that your presence really remarks that you all are concerned for the future of your wards and your child. So without delaying, I would like to request our Honorable Director Sir to please come up on the stage and motivate the students with the momentum. And I also like to call the rank holders of NLU class nursery Ayad Akhtar, who is holding 92 points. Worked hard to achieve the certain rank. I request everyone so the students who are scoring first rank from class 1 to 8, as per sir, there will be no fees from class 1 to 8 for the students holding first rank. Give a big round of applause. And the students who now from class 2nd, I would like to call Anamika Singh, who is holding first position with 98.0%. Anshika Singh holding second position with 95 point. Now from class 3rd, I would like to call Arushi Gaur, who is holding first position with 96.3%. Divyansh Pal, who is holding second position with 94.6%. And Anshika Mishra holding third position with 90.6%. Arushi, Divyansh and Anshika of class 4th, please come up on the stage. Now moving forward to who is holding first rank with a percentage of 96. सरर होलिका जले शत्रु राग में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने बात यही मन में ठानी है माए भवानी हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है अब ये ही नाज वे तेरी लाज हम रखे तेरे चरण की जबर माँ जगदम्बे है माया भवानी
गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका कमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम जटाभुजंग पिंगल सुरत्सणामणि प्रभा कदंब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत्व गुप्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी ओम नमः शिवाय सदाशिवं भजध्वकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे नरो विशुद्धिमेति सन्ततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनो अगर 100 नंबर में से आपको इस बच्ची को कुछ नंबर देने हो तो आप कितने नंबर देंगे? बस यही आप लोगों का प्यार इस बच्ची को बहुत आगे बढ़ाएगा। अभी अभी एक सर ने मैसेज मुझे दिया हमारे मुख्य अतिथि श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी द्वारा। इस बच्ची ने जो अभी परफॉर्मेंस दिया शिव तांडव पे, इनकी ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, ट्रैवल अलाउंस जो इनको अलग से खर्च करना पड़ता है, ट्रैवल की फीस, हर एक फीस अभी अभी ये डिसीजन हुआ है माफ किया जा रहा है। अगले सेशन में किसी प्रकार की कोई फीस इस बच्चे की नहीं लगेगी। इसके अलावा अभी कुछ देर पहले जो परफॉर्मेंस हुई थी बरसोरे मेघा So let's call our next boys group to make some mistakes and cheer you all with their performance on the song of Galti Se Mistake. झटका जरा सा महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। बेटा
साइड में तुमको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक 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 बेटा It was a marvelous and Now moving forward from class 7, I would like to call 0% and Ravi Yadav host. Pranjal. आप सभी से एक अनुरोध है कि जिन बच्चों को प्राइज दी जा रही है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप एक ताली क्यों ताली बजाएंगे जरा सोचिए प्लीज। और जो लोग अभी मैं देख रहा हूं कुछ गार्जियन मार्कशीट लेने के लिए वहां खड़े हैं, प्लीज बैठिए, कार्यक्रम के बाद वो हम जो विजेता रहे हैं सांभवी, चलो जो सेकंड में 2 लोग हैं, श्रेया और नीलाक्षी। कोई बात ओवर। थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो मान मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो मान मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो जो लड़ सका है वो ही तो महान है जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे ये जाके आसमान में दहाड़ दो आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो मान मान शान या की जान का हो दान आज धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बखार दो आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो मान मान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो आरंभ है प्रचंड आरंभ है प्रचंड आरंभ है प्रचंड थोड़ी मेहंदी लगने से पहले थोड़ी ढोलक बजने से पहले पैरों में पायल बंधने से पहले थोड़ा मंडप सजने से पहले रैगो गोल लगा के रखेगी हाय अभी तो बन्नू नचेगी हाँ अभी तो बन्नू नचेगी रैगो गोल लगा के रखेगी हाय अभी तो बन्नू नचेगी हाँ अभी तो बन्नू नचेगी हाथों में लगी है मेहंदी जिस पर बनने का नाम है और जुल्फे खुली हवा में उड़ती जाए रे परियों सा लग रहा है हंसता हुआ मेरा चेहरा घर अपने शादी वाली रात आई रे तो नाचो खुल के ऐसी वेडिंग फिर ना आएगी रे टेंशन ना लो बन्नो सबसे मिलके जाएगी पर अभी तो बन्नो नचेगी हाय अभी तो बन्नो नचेगी रैगो गोल लगा के रखेगी
It was an amazing performance and माँ माँ माँ, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना। मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखिए। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। घर से मंजिल तक एक खौफ अपने ही शहर में, क्या बेटी सही सलामत लौटेगी अपने ही घर में? सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। आधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है, किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। I dream of night, I dream of day, I dream of watching you fade away. बहुत हो गया, अब देखो नारी का असली रूप। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। मर्दों वाली बात कह के मुझे भेड़ समझ के बेचोगे। उन बाजारों में तेरी मैं नस्लों को मिटा दूंगी। कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी, मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
It was an amazing performance, and as we know, दुनिया में लड़ने के लिए, पढ़ने के लिए हर एक एंगल से तैयार कर दिया। ये मैसेज इस गाने के जरिए आप तक पहुंचा। हमारे बीच एक शख्सियत अभी अभी मौजूद हुए हैं, रवि सिंह। थैंक यू सर, आपने समय निकाल करके अपना कीमती समय यहाँ पे दिया हमारे बीच। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। हमें एक अनाउंसमेंट करने के लिए अपनी तरफ सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एआई के बारे में कुछ हमें भी बताएं। और सर ने जो हमें ऑफर किया है कि हमारे स्कूल में क्लास 6 से ऑनवर्ड, जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऑनवर्ड क्लासेस के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स इस सेक्शन पर सर अपनी तरफ से दिल्ली से प्रोवाइड करेंगे। मुझे लगता है हमारे बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि एक न्यू टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पर पढ़ने और सीखने को मिलेगी। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इसके बारे में अगर कुछ चीजें आप बता पाएं। So, hello everyone. So, myself Ravi, I work as an AI engineer. So, like I have total work experience of approx 4 years working in the field of AI. And recently, like few months back, I founded one company, Infinity AI. So, I'm here just to tell you guys like what's happening in the industry, like how the things moving on, how the people are just getting replaced by the machines and softwares. So, like मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि like हम कैसे इस समय मशीनों से रिप्लेस होते हुए जा रहे हैं। लाइक ये बहुत लोगों का कंसर्न भी होगा कि हम रिप्लेस हो रहे हैं, क्योंकि जॉब तो जा ही रही है, बट जॉब कहाँ जा रही है हमें ये देखना पड़ेगा कि जॉब कहाँ जा रही है। जैसे हम लोग एआई में काम करते हैं, तो एआई में अभी कुछ दिन पहले हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिससे हमने सिक्योरिटी गार्ड्स को रिप्लेस कर दिया। तो जस्ट देखिए, अब सिक्योरिटी गार्ड्स रिप्लेस हुए एआई के सॉफ्टवेयर से। जो सिक्योरिटी गार्ड काम करता था वो एक एआई का एप्लीकेशन काम कर रहा है, सारे काम वो करेगा। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लाइक जैसे जैसे लाइक टेक्नोलॉजी मूव हो रही है तो जॉब्स नहीं रिप्लेस हो रही हैं। जॉब आपको लाइक वो अपॉर्चुनिटी गेन करनी है। क्या करना है कि लाइक आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर रहना है कि आगे जाके लाइक फ्यूचर क्या है। फ्यूचर है एआई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लाइक इंडस्ट्री तो अभी कुछ ऐसी चल रही है कि लाइक 2 साल पहले जो कंपनी 0 से स्टार्ट की हुई है आज मे बी 100 CR का बिजनेस कर रही है। तो लाइक दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। सो लाइक मैं सबको बताना ये चाहता हूँ कि लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग, लाइक मैंने जब कॉलेज किया था, अपना स्कूल किया था, तो लाइक उस टाइम पे कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब बहुत ज़्यादा नहीं था। तो मैंने इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और कॉलेज में जाने के बाद भी लाइक कंप्यूटर साइंस के तो सारे कोर्सेज का कॉलेज में ही है। तो अगर आपका स्कूल अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप स्टार्टिंग से कुछ कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ते जा रहे हो, तो ये आगे जाके आपको लाइक कॉलेज में मे बी आप जब कॉलेज में जाओगे तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि लेट्स मूव विद द फ्लो, लेट्स गो विद द फ्लो। Like what's happening in the industry, like we will adapt that, like we will convert ourselves, like what is going in the industry in the same way. And that's all from my end. Thank you. Thank you, sir. मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना सुन। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोलना
चाहेगा दिल तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल मेरे गीतों के साए में तेरी राहतों की खुशबू है तेरे बगैर क्या जीना मेरे रोम रोम में तू है मेरी चूड़ियों की खनखन से तेरी सदाएं आती है ये चूड़ियां हमेशा ही नज़दीक हम आती है मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोल ना It was a great करते रहिए। प्लस जो जो चेंजेस हमारे स्कूल में आए हैं वो आपको विजुअली दिख रहे होंगे। सारी चेंजेस चाहे वो बच्चों के एजुकेशन पे हो, चाहे एक्टिविटीज़ पे हो,
जो भी सारी चीजें हैं वो आपको क्लियर दिख रही होंगी। और जो हमारे बच्चों में जो प्ले ग्रुप के जो बच्चे हैं जिनमें जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हुई है वो आपको ये नियर बाय किसी भी स्कूल में देखने को नहीं मिलेगी। जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग यहाँ पे बच्चों को सिखाई जाती है, छोटी से छोटी चीजें जो बच्चे करके सीखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। सो आप लोग इसी तरीके से अपना सपोर्ट करते रहिए और हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को हमारे स्कूल में लेके आइए और अपना सपोर्ट इसी तरह दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच ऑल द पेरेंट्स, थैंक यू सो मच। छुप छुप के मुझे देखा तू तेरे सारी सारी रात, सारी सारी रात। मिल जाए मुझको तेरे साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां। सोगा तारा, चबीला तारा, रंगीला तारा, रंग जुए तारी बात। सोगा तारा, ओए चबीला तारा, ओए रंगीला तारा, रंग जुए तारी बात। सोगा तारा, ओए चबीला तारा, ओए रंगीला तारा, रंग जुए तारी बात रे। Our director sir, parents, Shruti Gaur of class 3rd, she scored 99.2. Holding second position, Harsh. Now, for the Rakhi making competition from class 2nd, I would like to call Pragati, Amandeep Singh and Kunj Pratap holding 3rd rank. Pradeep holding 3rd rank. Shraddha Prajapati holding 2nd rank. And Arushi holding 3rd rank. And Nitish Gaur holding 3rd position from class 6. Okay. From class 6, Shivani Yadav holding the 2nd rank.
Isha, Shivani and Nitish. Isha holding first rank, Shivani holding second rank, and Nitish God holding third rank. Now moving forward to class 7, I would like to call Sonakshi Singh holding first rank in thali making competition, Ansika Yadav holding second rank, and Tanya Singh from class 7 holding third rank. Sonakshi Singh, Ansika and Tanya of class 7, are you here? Anshika holding second rank, Anshika Yadav, and Astha holding third rank. Now moving forward to class 9, I would like to call Swati Singh holding first rank in second rank, and Aryan Gupta third rank. Now moving forward to class 10, I would like to call Sonali Yadav holding first rank in in thali making competition, and Jagriti holding third rank. Now from class 11, Sambi Srivastava holding first rank, Nilakshi Pandey holding second rank, and Shreya Sharma holding third rank. Now moving forward to the sports day prize, I would like to call Shreya Yadav, class 8, Shreya Sharma, class 11, and Anshika Gupta. Anshika Gupta is here. Now moving forward for the skipping event, I would like to call Anshika of class 8 holding first rank, Priya Yadav, class 9 holding second rank in skipping, and Ritima, class holding second rank from class 6. Anshika Now moving forward to our next event, I would like to call Divyans from class 4th holding first rank in boys race 100 meter. Anuj from class 5th holding second rank, Durgesh class 7 holding third rank, and boys race 100 meter, first rank holders Divyans class 4, Anuj class 5th, Durgesh class 7, and Kishan class 2nd, and Praveen class 3rd. जल्दी आइए जल्दी आइए Now the boys holding second position in 100 meter race from class 5th, Ayush, Shivam class 5th, Nitish class 6th, Krishna class 11, and Ahad Ansari class 1st. Aryan Pathak
class 2nd, and Arush, class 3rd. Ayush, class 5th. Shivam, class 5th. Nitish, class 6th. Krishna. Now the boys holding 3rd rank in 100-meter race, I would like to call Abhishek from class 4th, Aryan class 5th, Harsh class 8, Gaurav class 9, Utkarsh class 2nd, Adarsh class 2nd, and Rajat class 3rd. I repeat again, Abhishek class 4th, Aryan class 5th, Harsh class 8, Gaurav class 9, Utkarsh class 2nd. Now moving forward for the participants of science exhibition competition. Swati Singh and group for the model global warming representing class 9. Shivam and group for the model greenhouse effect representing class 9. Asta and group, Swati Singh and group class 9, Shivan and group class 9. Now the students holding 3rd rank in science exhibition competition are उसके बाद वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वगैरह निकाली पड़ा हुआ फोटो भी कैप्चर करना है फोटो भी कैप्चर करना है नहीं सर फोटो नहीं कैप्चर पाया वीडियो के लिए पाया मिल जाता है जैसे कि गेम शर्ट पहले नहीं है में लड़की तर पहिले नाही सर तेव्हा पॅन्ट पहिले म्हटलं हेवी माहिती कधी येते नाही पाहिजे काही पण बाहेर पहिले एका नाही पण आपण आहे गाडी एकदम बसरी मडाक मडाक कट काट नाही काटी आपण नाही कर पण गाय थोडी यासाठी ये अगर पहले दाढ़ी बनाओ तो बताओ अगर नहीं कटो बनाने Now, students holding 3rd rank in science exhibition competition, Reshma and group, Prakhar and group, and Isha and group from class 6. Reshma and group for the model stage water filtration, Prakhar and group for the model solar system, and Isha and group for the model rainwater harvesting.
ये लोग डायरेक्ट चलेगा ना का कुछ ठिकाना पड़ी ना पागल हो जब लाइट से काम कर ठिकाना में के बा यहाँ टपन करो Now, there are more. There are many more existing prizes for the students. So, for the highest perseverance in the year, I would like to call Nitish Gaur from class 6, Ananya Modanwal representing class 7, and Arya Singh of class 11. They scored the rank of the highest attendance in the academic year. Nitish, Ananya and Arya for highest attendance during the academic year. Nitish, Ananya and Arya for the highest attendance during the academic year. सर ये एब्सेंट ही नहीं करती है, मजबूरी में इसको दोबारा हमको बुलाना पड़ेगा, लेकिन इसको हमने Now moving forward to the next prize, I would like to call the best progressive child during the academic year, Divyansh Pal of class 4. Sakshi. शुक्रिया करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोग जो है इस मतलब हार्ड कंडीशन में भी बैठे थे और बच्चों के जो एनकरेज करने के लिए बहुत ही शांतिपूर्वक इस प्रोग्राम को आपने बैठ करके सुन करके देख करके सफल बनाया। हर बार की तरह हमारे जो बच्चे रैंकर्स आते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उनकी ट्यूशन फीस उसी अकॉर्डिंग पूरे सेशन के लिए माफ़ रहेगी स्कूल की तरफ से। और जो भी बच्चे यहाँ एक्टिविटी में भाग लिए, स्टेज पे आए,
जिस प्रोग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सारे बच्चों का 1 महीने की फीस, पूरे साल में 1 महीने की फीस स्कूल की तरफ से माफ रहेगी, फ्री रहेगी। और हर बार की तरह मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग स्कूल आइए, क्योंकि बिल्डिंग नहीं पढ़ाती है। किसी बच्चे को कोई बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाएगा तो गुरु अगर काबिल होगा तो वहां पे टीचिंग और लर्निंग होगा, नहीं तो बिल्डिंग से ये पॉसिबल नहीं है। अगर बिल्डिंग ये पढ़ाती तो अच्छे अच्छे घर के बच्चे जो हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, वो इजीली पढ़ लेते और सबसे आगे रहते हैं। इसी नाते मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, आप आइए, महीने में 1 बार 2 बार आइए और जो टीचर आपके बच्चों को पढ़ाते हैं उनसे मिल करके बच्चों के बारे में अपडेट होइए, टीचर को भी अपडेट कराइए, तब आप घर जाइए। और मैं अपने सारे बच्चों को जिन्होंने कड़ी मेहनत करके पोजीशन अचीव किया, रैंकर्स हुए, रनर्स हुए, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद धन्यवाद देता हूं और एक्सेप्ट करता हूं, आशा भी करता हूं कि वो अपने आप को इम्प्रूव करके नेक्स्ट जो हमारा एनुअल डे होगा उसमें अपने आप को और प्रूव करेंगे। अब कुछ लोग अपना रिपोर्ट कार्ड ले लिए होंगे बच्चों का, और कुछ गार्जियन बैठे हैं, वो अपना स्वीट्स पानी वगैरह पी करके आराम से रिपोर्ट कार्ड लें, टीचर से इत्मीनान से मिलें। और नेक्स्ट सेशन के लिए कुछ हमारे बच्चे जो थे, आयशा सिंह और वो बच्ची छोटी सी थी, वो बच्ची हर्षिता पांडे, इन बच्चों का जो स्टेज का परफॉर्मेंस था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, हाईली कमेंडेबल था। जितना उसके बारे में बोले वो कमी है, इतने छोटे से बच्चे इतना अच्छा परफॉर्मेंस। इन दोनों बच्चों की बुक्स, कॉपी, किताब, बैग, ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस सब स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी नेक्स्ट सेशन के लिए। और आगे जो भी बच्चे इस तरह का परफॉर्मेंस देंगे, सारे बच्चों के लिए फैसिलिटी हमेशा ही रहेगी। जैसा आईटी सेक्टर वाले मिस्टर रवि प्रताप सिंह आए थे, उन्होंने बताया कि हम 6 ऑनवर्ड आईटी का क्लास यहाँ पे चलाएंगे और ट्रेनर टीचर डेली से हम बुलाएंगे। 10 या 15 डेज वो आकर के यहाँ पे बच्चों को गाइड करेंगे और ट्रेनिंग देंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप सर से मिल करके नाम रजिस्टर करा दीजिएगा। और आईटी का तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या वैल्यू है इस समय, और हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी सेशन से हम जो है आईटी सेक्टर का क्लास चलाएं। और वो बच्चा आया था, अभी आपके सामने खड़ा था, वो कितनी कम एज में एआई इंजीनियर है और खुद अपनी कंपनी लॉन्च किया, उसका सीईओ है। कम से कम 10,000 लोग उसके एम्प्लॉय हैं। तो हम चाहते हैं हमारे सारे बच्चे जो है, क्योंकि मैनुअल जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जितना, अनएम्प्लॉयमेंट जितना तेजी से बढ़ रहा है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे, अगर हमारा कंप्यूटर साइंस से ही हमारे बच्चों को रोजगार मिले तो अभी से हम उसको स्टार्ट कर दें कि हमारे बच्चे आगे चल करके जैसे ग्रेजुएट हों तो ये ना फील करें कि अब हम करें क्या। ग्रेजुएशन करते करते वो अपने जॉब में पूरा फिट एंड परफेक्ट हो जाए। इसके साथ आने वाले सेशन के लिए हमारी आप लोगों से हम यही आशा करते हैं कि आप बच्चों पे और मेहनत करेंगे। ये आपकी मेहनत का नतीजा है। हमारे पास तो बच्चे 4-5 घंटे ही रहते हैं, आप मेहनत करते हैं तो हम बस थोड़ा सा पॉलिश करके रिजल्ट दे देते हैं। आशा करते हैं आप लोग आगे भी सहयोग करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। Bit of good part. Keshav sir, can I please have you here? But before, I would like to call Isha Yadav of class 6 upon the stage because she was missed out with her hardship.
मैं कोई स्पीच नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाह रहा हूँ और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये बातचीत आप लोगों के लिए भी जरूरी है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा शांति बनाए रखें और मेरी बातों को जरा गहराई से समझने का प्रयास करें, ठीक है? बहुत से गार्जियन आए हैं, बच्चे भी आए हैं, बहुत से गार्जियन नहीं आए। यहाँ आना क्यों जरूरी था? क्या आप इस बात के महत्व को समझ पा रहे हैं? यहाँ आना क्यों जरूरी था? जिन बच्चों ने आज यहाँ पर सर्टिफिकेट और प्राइज गेन किया है, आज उनका मोटिवेशन बहुत हाई होगा, उनका मोटिवेशन बहुत ऊंचा होगा, वो और बेहतर करने का प्रयास करेंगे अगली क्लास में। इसलिए आपका आना, बच्चों को लेके आना बहुत जरूरी था। हमने इस स्कूल में दिसंबर से अगर मैं जोड़ना शुरू करूं तो हमने कुछ ऐसी चीजें की हैं जो सामान्यतः बहुत बड़े इंस्टीट्यूटों में ही होता है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमने अभी इंडस्ट्रियल विजिट करवाया। इंडस्ट्रियल विजिट क्या था? बच्चों को ये दिखाना और समझाना कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में आज काम किस प्रकार मशीनों द्वारा हो रहा है। ये उनके सब्जेक्ट में भी है, विषय में भी है, उसको वो प्रैक्टिकली देख रहे हैं। उससे उनको जो ज्ञान मिला, जो चीजें मिली, वो सामान्यतः बहुत से विद्यालय में ये फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, तो नहीं देख पाते। हमारे मैनेजमेंट ने मेरे एक रिक्वेस्ट पर इस पर हामी भरी, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने मैनेजमेंट का, जो यहाँ से गीडा तक बच्चों को ले गया और सुरक्षित फिर हम लेके आए। इसी प्रकार कुछ दिन पहले हमने साइंस एग्जीबिशन का एक प्रोग्राम किया था, जिसमें बच्चे विज्ञान से संबंधित बहुत सारे मॉडल्स बनाए थे। इन मॉडल्स को बनाते वक्त उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने पढ़ा। तो हम चाहते हैं बच्चा पढ़े, वही काम मॉडल बनाते वक्त बच्चे ने किया और वो जो जिस विषय पे मॉडल बनाया वो उसे याद हो चुका है, आज वो उस पर बेहतर एक्सप्लेनेशन दे सकता है। इसी क्रम में हमने बहुत अभी हाल ही में स्पोर्ट्स डे करवाया। 3 दिन का हमारा खेल प्रतियोगिता चला, जिसमें ये सारे सेल्स, प्राइज और अवार्ड बच्चों को दिया गया। कहने का मतलब ये सारी एक्टिविटीज हमारे विद्यालय में हो रही है। इसके साथ साथ हमारे सभी टीचर्स इन एक्टिविटीज में फुल पार्टिसिपेट किए बच्चों की बेहतरी के लिए। ये सारी चीजें एक विद्यालय करवा रहा है। अब सवाल ये आता है कि इसके बावजूद कई बार ऐसा देखते हैं कि बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। बच्चे यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और घर पे कंप्लेन आती है कि सर बच्चा तो पढ़ नहीं रहा है। तो कारण क्या है? ये जानने के लिए मैंने अपने मैनेजमेंट से इजाजत ली कि मैं बच्चे के घर तक जाना चाहता हूँ। और पिछली गर्मी में मैं लगभग हर बच्चे के घर पहुंचने का प्रयास किया और मैं गया भी। यहाँ बगल में एक गांव है कलौरा, आगे नीलाक्षी का एक गांव है, क्या नाम है उसका, वहां हम लोग गए। ऐसे कई गांव में गया। मैंने ये पाया कि हम बच्चे को यहाँ गेट के अंदर कहते हैं, बेटा से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू सर, हम ये सिखाते हैं। और घर पे मैंने देखा कि उसके माता पिता कहते हैं, हे कहाँ गई ले, क्या करते। तो आप इमेजिन करिए कि हम कितना सिखा पाएंगे और आप वहां पे जो डिलीवर कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने बच्चों के साथ अगर इंग्लिश में नहीं बात कर पा रहे हैं तो शुद्ध हिंदी, अच्छी हिंदी में बात करें। उसमें कोई भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना हो जिससे कि उसकी टंग बिगड़ जाए, ताकि वो इन 2 भाषाओं में महारत हासिल करे, एक अंग्रेजी और दूसरी हिंदी। बहुत जरूरी है। बहुत से माता पिता ये चाहते हैं कि बच्चा हर समय पढ़ता रहे और कंप्लेन आती है कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है। अरे भाई, आपको ये समझना होगा, आप उसके गार्जियन हैं। हम यहाँ 4 घंटे 6 घंटे बच्चे के साथ हैं, उसकी मानसिकता को पढ़ने का प्रयास करिए। हर बच्चा पढ़ाई में अव्वल दर्जे का हो, ये संभव हो ही नहीं सकता। नहीं तो मैं अब्दुल कलाम आजाद होता। क्या नाम था उनका, अपने प्रेसिडेंट साहब का, APJ अब्दुल कलाम। फिर मैं भी टॉप होता, फिर ये भाई साहब भी टॉप होते, फिर वहां जो बच्चे बैठे हैं मैं सब टॉप होते। हर किसी का मेंटल लेवल अलग अलग होता है, व्यक्तित्व अलग अलग होता है। वैसे ही आपके अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों का व्यक्तित्व अलग अलग होगा। कोई चंचल होगा,
कोई बिल्कुल चुपचाप रहता होगा। अब चंचल वाला कम नंबर लाता है और गेम में बहुत सारे मेडल लाता है, और जो चुपचाप बैठा हुआ है उसके साथ क्या हो रहा है, वो नंबर बहुत ला रहा है। लेकिन खेल कूद प्रतियोगिता, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, ये सब नहीं करेगा जल्दी, वो बाद में करेगा। तो ये उसका अपना व्यक्तित्व है, इस पे टाइम लगेगा। तो बच्चे को उस हिसाब से आप माहौल दीजिए। अब बात माहौल की आई तो एक बात और कहना चाहूंगा। माहौल से कई बार गार्जियन की कंप्लेन आई कि माहौल अच्छा नहीं, अब हम बच्चे को यहां से वहां ले जाएंगे। अभी कल एक फोन आया, बच्चे को यहां से वहां ले जाएंगे। शौक से ले जाइए, मुझे बताइए, मैं आपके बच्चे को जहां कहें वहां ले चलता हूं एडमिशन के लिए, एकदम ले जाइए। बट मैं अपनी बात बताऊं, मेरी 8 साल की बेटी है, क्लास 8 में मेरी बिटिया है, क्लास LKG से जहां पढ़ रही है वहीं आज भी है और वहीं से इंटर करेगी। छोटी वाली मेरी बेटी अभी LKG में है। यहाँ भी कुछ बच्चे हैं जो LKG UKG से पढ़ना शुरू किए और अभी तक क्लास 9 तक हैं। जानते हैं, ऐसा जब हम बार बार बच्चे को ट्रांसफर करते हैं वन स्कूल टू अनदर स्कूल, तो एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट होता है। वो ये कि जैसे आपने एक छोटी बच्ची का डांस देखा जिसका नाम था हर्षिता, देखा था आप लोगों ने? देखा था कि नहीं? सर तो हिलाइए, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं। वो बच्ची क्या मेरी बेटी है? क्या वो मेरी बेटी है? नहीं। वो देखिए सामने आ रही है, वहीं रहो बेटा, वहीं रहो, आई एम नॉट कॉलिंग यू, जस्ट सिट डाउन, इन छाया में आ जाओ। उस बच्ची ने जो अपना डांस खत्म किया तो वो यहां से आई, गले लगी। देखा होगा शायद आप लोगों ने। ये दिस इज द बॉन्डिंग ऑफ अ टीचर विद हिज स्टूडेंट। एक अध्यापक का उसके बच्चों के साथ बॉन्डिंग, वो फेविकोल वाला जोड़ जो टूटता नहीं है, ये अगर टीचर स्थापित करने में नाकामयाब रहा तो वो टीचर ही नहीं है। फिर वो ऐसे B.Ed, M.Ed, C.Ed पता नहीं क्या क्या करके चले आते हैं। दैट काइंड ऑफ टीचर, एंड आई हेट दैट टाइप ऑफ गाइस। मुझे पसंद ही नहीं है ऐसे टीचर। वो चीज आनी चाहिए। आपको मैं बताऊं, किसी भी दिन कोई भी गार्जियन चैलेंज कर रहा हूं, आप यहाँ आ जाइए, मैं दरवाजे से एंटर करूंगा तो मेरे जो छोटे छोटे LKG, UKG और प्लेवे के बच्चे ना, वो आते हैं। अगर मैंने हाथ यूं किया तो मेरे हाथ पे हाथ मार के ऐसे हाथ लगा के जाएंगे। अगर मैंने यूं किया तो मुझे गले लगा के जाएंगे। तो छोटे बच्चे को क्या हम पाइथागोरस का थ्योरम सिखाना है? मुझे उसको तो यही सिखाना है ना, हाव भाव, बोल चाल, यस सर, नो सर, यही सिखाना है। तो मैं उसे पाइथागोरस थ्योरम नहीं सिखा पाऊंगा, मैं उसे यही सिखाऊंगा, यस बेटा हाउ आर यू, वो बताएगी यस सर आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। इतना सिखा दिया बोल बोल के। बहुत से जगह पे यही पद्धति है, उसको लिखेंगे, चिड़िया उड़ रही है फुदक फुदक के, बेटा ट्रांसलेट करो। अब वो फुदक फुदक की इंग्लिश बेटा कक्षा 12 तक ट्रांसलेट नहीं कर पाता है। हाँ, यही होता है। लेकिन इसी चीज को जब हम प्लेवे नर्सरी पे बच्चों के साथ बॉन्डिंग बना के करते हैं तो सफल हो जाते हैं। वो हर चीज को ट्रांसलेट कर लेता है इन माइंड एंड डायरेक्टली डिलीवर विथ हिज माउथ। एंड व्हाट आवर स्टूडेंट इज डूइंग इन आवर रीजन, they see the thing in Hindi, then thought in Hindi, and then after in mind they translate in English, और फिर डिलीवर करने की बात आएगी जो मुंह से आवाज निकलेगी। जब इतना लंबा प्रोसेस होगा तो कब डिलीवर करोगे? तो सामने वाला तो बोल के चला गया। आजकल खेतों में पानी चलाने के लिए डिलीवरी का यूज किया जाता है। पहले नारी बनती थी, तो जब हैंडल मारते थे पानी को नारी के द्वारा खेतों तक आने में बड़ा टाइम लगता था। आज डिलीवरी सिस्टम है, हैंडल मारा कि नहीं पानी पहुंच गया। तो जब आप इतना ट्रांसलेट करोगे माइंड में, यू कांट डिलीवर द वर्ड इन विद इन टाइम। तो हमें सीखना पड़ेगा, देखना है इंग्लिश में देखो, सोचना है इंग्लिश में सोचो, तब डिलीवर अपने आप इंग्लिश में हो जाएगा। ये करने का प्रयास हम कर रहे हैं और ये प्रयास सफल तभी होगा, एकमात्र तरीका है सफल होने का आपका सहयोग। घर पे आप अच्छा माहौल दीजिए, और दूसरा एक स्कूल में बच्चे को हाई स्कूल इंटर तक रहने दीजिए। ये बार बार ट्रांसफर करते हैं। मैं पिछले साल आया, मैंने देखा लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। डोंट थिंक दैट आई एम इन फेवर ऑफ, ना ना ना, मैं अपने फायदे के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय ऑफ दिस स्कूल। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का एक कर्मचारी हूँ। 8 घंटा मेरा यहाँ लगता है, बदले में आई गेट द सैलरी, मुझे पैसा मिलता है। जिस दिन पैसा नहीं मिलेगा उस दिन मैं तारीफ क्यों करूंगा? मैं चल दूंगा गोरखपुर। फैक्ट है कि नहीं? आप लोग बुद्धिजीवी हैं, खुद बताइए। मुझे सैलरी मिलती है तब तो बात कर रहा हूं, बट 8 घंटा देना है तो 8 घंटा मन से देना है, उसी का पैसा लेना है।
तो मन से देना है, तो उसमें एक बात तो आ रही ना कि आपके बच्चे को सही चीज नहीं सिखाया तो फिर क्या मतलब है मेरे यहाँ रहने का। आपको कम से कम यहाँ पर बच्चे को अगर NLU में ला रहे हैं तो दिमाग में बिठाइए कि इसको यहाँ पे क्लास 10 तक रखना है। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ। मैं तो बहुत ताजुब में हूँ कि अगल बगल के स्कूलों में मेरे यहाँ के 6 स्टूडेंट कौड़ीराम के एक बड़े स्कूल में हैं। मेरे यहाँ के 6 टीचर कौड़ीराम के बड़े स्कूल में हैं। 3 यहाँ के बेहतरीन टीचर छोड़ गए, हमारे लोकल में ही एक स्कूल में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो बेहतरीन टीचर थे तो वो टीचर यहाँ से अगर कहीं और जाके पढ़ा रहा है तो क्या उसकी काबिलियत में 100% का इजाफा आ गया। मैं यहाँ छोड़ करके सेंट जेवियर चला जा रहा हूँ कल को, तो क्या मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं वो बहुत इंप्रूव कर गई अगले दिन? आप ही बताओ ना, इंप्रूव कर जाएगी रातों रात? नहीं। अगर इंप्रूव करती तो मैं यहाँ से छोड़ के जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिखता बच्चे के अंदर बदलाव आ रहा है, मुझे खुशी होती तो मैं क्यों छोड़ता। तो अगर यहाँ के बेस्ट कहीं और जाके पढ़ा रहे हैं और आप बिल्डिंग को, बस को, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के जा रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बच्चे को नहीं पढ़ाएगा। वो काबिलियत टीचर में होती है। बच्चा मेरे गले लगा है, बच्चा बिल्डिंग के गले नहीं लगा है, वहां बैलून के गले नहीं लगा है, बच्चा मेरे गले लगा है। ये मेरी काबिलियत है, मुझे प्राउड है इस पे। तो ये सारी बातें बार बार कूदना भागना नहीं, एक जगह रखिए, विश्वास करके रखिए। और बच्चे शरारत करते हैं। एक गार्जियन मेरे पास फोन किए आदर्श के, सर आप मेरा बच्चा वहां गिर गया तो उसका दांत टूट गया, एक बार गिरा तो उसका सर पे चोट आ गया, इसलिए मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा। मैं कहा भैया इसमें मेरी क्या गलती, शिक्षकों की क्या गलती, ऑनर की क्या गलती, बस ये बता दो। नहीं आप लोग की गलती नहीं है, केयर नहीं हुआ इसलिए गिर गया। मैं कहा कुछ दिन पहले आप घर पे इसको इतना मारे और लाए, बोले सर ये घर पे बहुत बदमाशी करता है, इसको मारिए। आप खुद डिफरेंस कर लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिल सकता है बहुत खराब से खराब माहौल में भी। शिक्षक सही होना चाहिए। हमारे बीच एक लड़की है रितिमा प्रजापति, ये सर आपका विद्यालय कलौरा एक जगह है यहाँ पे, उसी गांव की है रितिमा प्रजापति। क्या हो यहाँ पे? इधर आओ, कम हियर। आप लोग बोर नहीं होइए, मैं 5 मिनट समय लूंगा, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर कर रहा हूँ। कम फास्ट कम फास्ट। सी इज द गर्ल। जब ये यहाँ एडमिशन ली थी क्लास 6th में, इसी सेशन की स्टार्टिंग, इधर आओ। ये लड़की अपना नाम नहीं बता पाती थी कि सर माय नेम इज रितिमा, बोल नहीं रही है। 6-7 महीने बीते, इस लड़की ने मुझसे कहा सर गिव मी द माइक एंड आई विल परफॉर्म इन द असेंबली। लाइव है, आपके सामने रख इस लड़की को खड़ा किया हूं। ये बात कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इसको तेज बनाने के लिए मैंने एक गेम खेला था, वो भी शेयर करता हूं। अभी एक लड़की ने झोला भर के यहाँ से कप और सर्टिफिकेट लेके गई है, नाम है दिशा एंड ईशा। इसमें कुछ लड़कियों का और नाम है, दिशा, ईशा, अंशिका। ये एक क्लास 6 की इसकी क्लास की लड़कियां हैं। ये किसी से बातचीत नहीं करती थी, अकेले खाना खाना, किसी से मिलना जुलना नहीं, कुछ बोलना नहीं, कॉपी में लिखना नहीं। इसके माता ने कहा कि सर ये तो पढ़ ही नहीं पाएगी। कह रही है कि उस माहौल में मैं रह ही नहीं पाऊंगी, ऐसा माहौल है, सब अंग्रेजी में बात करते हैं, बच्चे भी सर भी, मैं वहां क्या करूंगी, मुझे तो लिखना नहीं आ रहा है। ये लड़की बोली कि सर मैं असेंबली में बोलूंगी, थॉट न्यूज। बोला भी इसने? यस सर। बोला इसने। ये कैसे हो गया? ये इसलिए हुआ कि मैंने इसको माहौल दिया, उन बच्चियों को बोला कि इसको अपने साथ ग्रुप बनाओ, दोस्त बनाओ, इसके साथ शेयर करो, इसकी कमियों को समझो, समझाओ। और नतीजा क्या निकला? आज ये स्टेज पे है, असेंबली भी करती है। ये मुझे गर्व महसूस हो रहा है इस बात को कहने में। और ये एक एग्जाम्पल नहीं, ऐसे 4-5 और एग्जाम्पल यहाँ मौजूद हैं, यहाँ मौजूद है। जाओ बेटा, थैंक यू। तो मेरी आप सभी को मेरा यही मैसेज है कि ये बार बार ट्रांसफरिंग मत करिए बच्चों को। अगर ये आज यहाँ छोड़ के चली जाए रितिमा, तो जितना इस पे काम किया वो सब नुकसान होगा। और एक चीज और, जब आप बच्चे को कहीं और ले जाते हैं ना, तो उस टीचर को बड़ा दुख होता है जिसने उस पे वाकई में मन से मेहनत किया। रात को नींद नहीं आती है जब वो बच्चा चला जाता है जिसके लिए हमने काम किया हो। रितिमा को टारगेट बनाया 3 साल इस पे काम करना है। इसके माता पिता कल को लेके चले जाए तो मैं क्या करूंगा?
ईशा, दिशा, इन पे काम किए हैं। आस्था को पिछले साल से सर मैंने स्टार्ट किया, अपने निगरानी में रखा हूँ। आप उसका रिजल्ट देख सकते हैं। नो डाउट सी इज वेरी टैलेंटेड, लेकिन टैलेंट को और निखारना, उसको रास्ते बताने हैं, ये सारी बातें। अंत में मैं अपने सभी अध्यापकगण, अध्यापिका, टीचर्स, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले 4 दिन से कुछ हमारे स्टाफ जो बीमार थे, दवाइयाँ ले लेकर के भी बच्चों को तैयार करवाए हैं। सभी मैम, सर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी हर एक बात मानी, हर एक चीज को ऑन टाइम करके मुझे डिलीवर किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सभी गार्जियन का धन्यवाद जो आप इतनी गर्मी में अभी तक मुझे सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी जब भी कार्यक्रम हो आप लोग जरूर आएंगे, और कोई भी दिक्कत हो मेरे पास, मेरा नंबर सबके पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। रात को भी जिंदा रहता हूं, कभी भी फोन करें। अगर गाड़ी नहीं चला रहा हूं तो जरूर फोन उठा लूंगा, ठीक है? सभी मैम लोग जो बैठी हैं, आप लोग बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सिर्फ गाड़ी चलाते वक्त फोन नहीं रिसीव करूंगा, नहीं तो पुलिस वाला चालान कर देगा, ठीक है? ये बात हो गई। दूसरी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपने मैनेजमेंट का। मैंने मनोज सर के सामने जो कुछ भी प्रस्ताव रखा, शुरू से मुझे लग रहा है सितंबर से, उन्होंने हर प्रस्ताव को माना। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी स्कूल की बेहतरी, बच्चों की बेहतरी के लिए आपसे मैं ऐसे छोटे मोटे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, और कुछ खर्च भी कराऊंगा। कृपा करें कि आप उसको बुरा ना मानिएगा। मैं जिद भी करूंगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय चाइल्ड। बच्चा मेरा प्रायोरिटी है सर, और उसी के लिए मैं आपके ऊपर कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर बनाऊंगा। उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप मेरा सहयोग जरूर करें। अंत में नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे हमारे ड्राइवर, दाइयां, अकाउंट ब्रांच, इन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मेरे कहने पर हमेशा टाइम पे सर्विस देने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अंत में हम जब कार्यक्रम को समापन करते हैं तो अपने देश के राष्ट्रीय गान से करते हैं। गर्ल्स, कुछ गर्ल्स स्टेज पे आ जाएं, और सभी गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। हम एक अपने राष्ट्रीय गान को करेंगे। फास्ट 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 फास्ट। गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्ज्वल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। बेटियों को बहुत बहुत प्यार।